Good morning, students. This is Deepak Sharma, your physics teacher. We are going with the chapter motion, and what we have discussed till now is about the physical quantity, whom we say it's a physical quantity, how to determine a physical quantity, how to classify a physical quantity, what are units, what are the type of unit. As we have discussed in the previous class, that unit is being divided into two parts. One is the fundamental unit and other one is the drive unit. Along with that, what we have discussed, scalar and vector, how we should define a scalar quantity as well as the vector quantity. So apart from that, what we have discussed about the motion, rest, reference point and type of motions, in which we have studied about the translatory motion, vibratory motion, oscillatory motion, rotatory motion. So children, this will be our part 5th lecture. So let's move and discuss the chapter further. Today the lecture flow will contain the speech, velocity, type of speech, type of velocity, type of motion. So children, let's move further. So let's discuss about the type of motion. Types of motion. We have classified this type of motion as uniform motion and non-uniform motion. From the name, it's very clear. Uniform means all same. Non-uniform means which are not same. So what is the exact meaning of uniform motion? Uniform motion, it is defined as when a body covers equal distance in equal interval of time. Let me give you an example. Suppose a person is standing here at point A and he has to reach a distance of 20 kilometers. So this 20 kilometer, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and that's your 20 kilometer. So what exactly happens is, a person moves first 2 kilometers after 2 hours. Then he covers next 2 kilometers in 2 hours. Next 2 kilometers, 2 hours. Next 2 kilometers, 2 hours. Then next 2 hours, 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 next 2 hours. It means each and every 2 kilometers is being covered at an equal time. Means suppose a person moved from his home at 6 o'clock. At 8 a.m. he has covered 2 kilometers. Then at 10 next to, 12 next to, 2 next to, 4 o'clock next to, 6 o'clock next to, 8 o'clock next to, 10 o'clock next to, 12 o'clock next to, and again 2 a.m. he is again covered 2 kilometers. It means that equal distance in equal interval of time. The person is covering equal distance, equal interval of time. This is known as uniform motion. When a body covers equal distance, equal interval of time. If I would plot a graph
for this given condition, that's the graph between distance covered to the time taken, and that's your 2, 4, 6, 8, or let's place it time as 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12, then 2 a.m., 2 p.m., then 4 p.m., then 6 p.m., then 8 p.m., then 10 p.m., then 12 p.m., and next comes to 2 a.m. and the distance covered is in kilometers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. Distance in kilometer. Let's plot a graph for it. Suppose the person moved from 6 at first 6 from 0 to 6. He went from 0. What exactly? Do the time become 0? सबसे बड़ी बात तो यही है, क्या कभी टाइम 0 होता है? नहीं बच्चों, मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, t0 टाइम 0, टाइम 0, सी टाइम 0। आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो कहते हो 0 से चला। देखिए, जहां से आप चलना शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे अक्सर इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि मान लीजिए आपका एक स्केल है और ये स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर का है। आपने किसी चीज को 2 सेंटीमीटर से नापा, मान लीजिए कोई पेंसिल है या कोई भी चीज है, और इसे आपने, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि आपने इसको यहां से मेजर किया। दोस्त, अगर मैं पूछूं इस चीज की कितनी लंबाई है, अब आप यहां पे देखें तो 2 से 1, तो क्या आप इसे कहेंगे 8 सेंटीमीटर की है? नहीं, आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर से मैंने नापा था, इसलिए 8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपने इस 2 सेंटीमीटर को क्या मान लिया? 0 मान लिया। अब आप देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तभी तो ये 6 सेंटीमीटर आई होगी। यानी जहां से आप शुरू करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। तभी आप वहां से नापना शुरू करते हैं। वही चीज मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, यहां 0 चला तो 0 मतलब टाइम 0 नहीं रहा भाई, कुछ रहा होगा भाई, 6 बजे में निकला था या 3 बजे निकला था, 4 बजे निकला था, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। अगर मैं मान लो 0 ना मान के यहां से मैं चला, तो पहले 0 से 4, अगर मैं 4 कहता भाई यहां पे 4 AM है, तो 4 से 6, यानी पहले में ये 2 किलोमीटर गया, 6 से 8 में फिर 2 किलोमीटर, 2 प्लस 2 कितना डिस्टेंस चला गया? 4, फिर 8 से 10, फिर 6 किलोमीटर से देखा मैं 6, फिर 2 किलोमीटर, फिर 12 में, फिर 8, फिर 2 बजे इसने देखा कि ये नेक्स्ट 2 किलोमीटर जा चुका है, 4 बजे नेक्स्ट, फिर अगले, फिर अगला। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये हुआ क्या है? 4 बजे से लेकर 4 बजे चला, 4 से 6 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 6 से 8 फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। अगर मैं इसे जोड़ूं तो बच्चों मुझे ये एक स्लोप मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो मेरा स्लोप होगा। तो यहां पे मुझे एक स्लोप मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए मिली है बच्चों क्योंकि बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है, अगर मैं पूछूं ये ग्राफ कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो, और वो ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, किस चीज का ग्राफ है, तो आप कहोगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
क्योंकि बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस का इसीलिए स्ट्रेट लाइन आई है, वरना ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चलता, इसी का एग्जांपल लेकर 20 किलोमीटर मेरे को जाना था और मैं इस तरीके गया। मैं पहले 2 किलोमीटर 2 घंटे में, अगला 2 किलोमीटर, बहुत ध्यान से देखिए, अगला 2 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में, अगला 2 किलोमीटर मैं 1 घंटे में, अगला 2 किलोमीटर मैंने 1.5 घंटे में, अगला 2 किलोमीटर मैंने 3 घंटे में। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं इसे 3 किलोमीटर। मैं अगला 2 किलोमीटर मैंने 4 घंटे में। तो बच्चों अगर मैं इसे देखूं और मैं इसी कंडीशन को यहां पे प्लॉट करता हूं, मैं अपने घर से, अब मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं थोड़ा देर के लिए और मैं दोबारा प्लॉटेशन करता हूं। मैं घर से 4 बजे निकला था और पहले 2 घंटे में मैंने 2 किलोमीटर गया, ठीक है, यानी पहले 2 घंटे में मैंने 2 किलोमीटर तय किया। 2 घंटे में 4 से गया तो 6 बजे मैं यहां पहुंच गया। अगला मैंने किया 2 किलोमीटर मैंने तय किया 2.5 घंटे में, यानी मैं इसको हटा देता हूं कन्वीनियंस, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला 2.5 घंटा, तो 2 4 मैं यहां पे कहीं रहूंगा और मैंने ट्रेवल किया अगले 2 घंटे में, मैंने 2.5 घंटे में सॉरी, तो 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा, 6 7 8 कुछ यहां पे मैंने 2 किलोमीटर तय किया। डिस्टेंस मेरा बराबर है कुछ ऐसे। अगला 1 घंटे में ही मैंने, 1 घंटा कुछ मेरा यहां आएगा भाई क्या कितना हो गया था भाई 8, और यहां पे नहीं आएगा, और ये मैं गया अगला 2 किलोमीटर कुछ यहां पे। अच्छा, अगला 2 किलोमीटर 1.5 घंटे में, अगला 2 किलोमीटर 1.5 घंटे में कुछ यहां, अगला 2 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी 1 घंटे 2 और 1 ही है कुछ यहां, अगला 2 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1 2 और 2 4। तो बच्चों अगर मैं इसको जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इसको जोड़ता हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन बड़ी अटपट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहां था फिर यहां चला गया फिर यहां चला गया। ये कर्व है, ये स्ट्रेट नहीं, ये बार बार कर्व होती है, कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी ज्यादा है कभी कम है। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन, पहले आप यहां थे फिर यहां चले गए फिर यहां चले गए फिर यहां चले गए फिर यहां चले गए फिर यहां नीचे आ गए, तो ये बार बार जो अप डाउन हो रहा है, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब एक बॉडी अनबैलेंस। लेकिन अब सवाल ये कि भाई ये जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? भाई देखिए, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आपके पास होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तब ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर मेरी बार बार मैंने भाई देख कभी कम ज्यादा, कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि बार बार मैंने या तो मैं तेज चला हूं या धीरे चला हूं, यानी बार बार मैंने अपनी स्पीड चेंज की है, बार बार मैंने अपनी स्पीड चेंज की है। इसी वजह से अगर मैं अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखता, स्पीड को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है? स्पीड को कांस्टेंट रखने का मतलब ये होता है कि मैं उतनी ही तेजी से चलता रहता जैसे मैं पहले 2 घंटे में चला, फिर अगले में भी वही रखता, फिर अगले में भी वही रखता, तो डेफिनेटली मेरा मोशन यूनिफॉर्म होता। लेकिन अगर कभी मैं धीरे चला, कभी तेज चला, कभी फिर मुझे एक साइकिल मिल गई, मैं साइकिल में बैठ के चल दिया, तो जब मैं ऐसा करने लगा तो मेरा मोशन बड़ा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, बड़ा हो, यानी इसका मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है,
तो मैं कहूंगा आपके पास वेलोसिटी है। और अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है और फिर भी ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा वो स्पीड है। और इसीलिए बच्चों इसी के बिहाफ पर, यानी बार बार जो मैंने, अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो मैंने डिस्टेंस चेंज किया है, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये है स्पीड और वेलोसिटी। इसलिए बच्चों जो स्पीड और वेलोसिटी है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक लाइन जुड़ जाती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या जोड़ देता हूं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मान लीजिए मैंने यूनिफॉर्मनेस मेंटेन की है, अगर बराबर चलता रहा हूं, बराबर स्पीड से चलता रहा हूं, तो ऐसी स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्लासिफिकेशन को देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के। मैं यहां पे क्लासिफाई करता हूं, दैट इज टाइप ऑफ स्पीड। मैं और यहीं पे टाइप ऑफ स्पीड के साथ मैं एक चीज और लिख देता हूं, टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। बस इतना याद रखिएगा, बस एक वर्ड जुड़ जाएगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वेलोसिटी, स्पीड के बाद वेलोसिटी का है, तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके बाद मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड, सेम हम आगे वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, इसके आगे भी वेलोसिटी लिख लेते हैं, साथ साथ दोनों को। और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। और नेक्स्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप वही लिखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म स्पीड कब मेंटेन रही, अगर यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन रही होगी तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहा होगा, तब उसे हम कहेंगे क्या इफ अ बॉडी बिल्कुल सेम, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो इससे पहले मैंने जो ग्राफ बनाया था, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन का था तो मैं ये भी कह सकता था भाई वो यूनिफॉर्म मोशन इसीलिए तय हुआ है क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वो ग्राफ मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ हो सकता था। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जब मैं अपनी चेंज ना करूं बार बार, तो हम उसे कहते हैं वो हमारी क्या यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर मान लीजिए दूसरी बात, अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो इसीलिए रहा होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी रहा होगा। भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अब बच्चों सवाल है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी समझ में आती है, इक्वल पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लिख दें तो वेलोसिटी डेफिनेशन हो जाएगी यूनिफॉर्म। ये एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है, मैं एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं आपको, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, देखिए बेसिकली होता क्या है, एवरेज क्यों निकाला जाता है साइंस में, जब हम ये कहते हैं फिजिक्स में, जब आपके पास एक एक्यूरेट डाटा ना हो। मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात हूं, एक स्केल से मैंने एक चीज को नापने के लिए कहा, वहां पे 3 स्टूडेंट थे और तीनों ने उसको नापा। किसी ने कहा सर ये 2 सेंटीमीटर है, किसी ने कहा सर लगता है 2.2 है, किसी ने कहा सर लगता है 2.1 है। अब सही कौन है, स्केल तो वही है और सबके नापने का, और एक्यूरेट मुझे भी नहीं पता कि एक्यूरेट कितना है, लेकिन किसने कहा सर 2 है, किसने कहा 2.1 है, 2 है। तो अब क्या करते हैं, जब इसे हम कहते हैं रैंडम एरर आना, सीधे क्लासिक लैंग्वेज बोलते हैं रैंडम एरर आ रहा है। एरर मतलब आ रहा है कोई कुछ नाप रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो क्या करते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका होता है, आप उन तीनों वैल्यू का एवरेज निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो, एवरेज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सही है। सेम थिंग हैपेंस हियर। मान लीजिए मैं आप बेसिकली आपने घर से गए और आपको कहीं दिल्ली जाना था जो 40 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक, आपके पास एक मोटरसाइकिल थी, आप निकले। अब आप क्या सोचते हैं कि आपने कहीं आपको भीड़ नहीं मिली होगी,
या स्पीड कहीं नहीं की होगी, या ब्रेकर कहीं नहीं आया होगा, या ब्रेक कहीं नहीं लगाया होगा। अरे लगाया होगा। और मैं आप मेरे घर पहुंचा, मैंने कहा 40 किलोमीटर तय करने आप मेरे घर में, मैंने कहा भाई किस स्पीड से आए हो या किस वेलोसिटी से आए हो, तो क्या आप मुझे एक्यूरेट आंसर दे पाओगे? आप अपने फादर के या मम्मी के कि बाइक स्कूटी पे बैठ जाइए या कार में बैठ के जाइए, तो आपको दिखेगा तभी कभी आपका जो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर लगा होता है, यहाँ पे वर्ड बोला मैंने, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर होता है बेटे, जो आपको मीटर लगा होता है कार्स में, वो स्पीडोमीटर को स्पीड भी बता रहा होता है, और ओडोमीटर भी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रेवल भी बता रहा होता है। तो स्पीडोमीटर भी है, वो ओडोमीटर भी है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो बराबर चीजें नाप रहा है? तो आपको देखिए कभी वो ज्यादा हो रही है स्पीड, कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो क्या वो मुझे यूनिफॉर्म मोशन है? वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता भाई तुम किस स्पीड से आए हो, तो क्या आप मुझे बता पाते? नहीं। तो आप कहते हैं सर हो सकता है सर मैंने शुरू के 4 किलोमीटर इतने टाइम में तय कर दिए थे, फिर थोड़ी स्पीड तेज की तो शायद इतने में तय कर लिए। तो आपके पास एक एक्यूरेट डाटा नहीं है। हाँ, 20 किलोमीटर आप तय करके आए हो और मैंने कहा आप 4 घंटे में मेरे पास पहुंचे, क्या मेरे पास 10 घंटे में आप पहुंचे थे, लेकिन वो 10 घंटे का टोटल 10 घंटे मिले हैं मुझे। वो 10 घंटे किसी ने 2 किलोमीटर पहले 1.5 घंटे में, फिर अगले 2 घंटे 2 घंटे में, सब अलग अलग टाइम पीरियड पे करे हैं। तो पहली बात तो नो यूनिफॉर्म मोशन है, और आप मुझे एक्यूरेट डाटा भी नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं? तो उस समय हम निकालते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए, एवरेज का मतलब है जब आपके पास एक रैंडम आप पर एक्यूरेट डाटा ना हो। इसलिए बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज अगर वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड के साथ हमेशा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं बोलता, दूसरा मैंने वर्ड लिखा है इंस्टेंटेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या है बेटे? इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी है। एक होता है आप 5 मिनट में कहां पहुंचे, एक होता है 5वें मिनट में कहां थे, 5th सेकंड, 6th सेकंड, 8th सेकंड, 9th सेकंड में आपकी वेलोसिटी, आप अभी तक मुझे एवरेज बता रहे थे। फिर मैं एग्जांपल था, आप अपने फादर के साथ बैठे हैं, मम्मा के साथ गाड़ी में बैठे हैं, मैंने उससे बोला पापा जरा एक बार बताना आपकी स्पीड कितनी है, तो आपको पता, पापा दोबारा स्पीडोमीटर देखेंगे, बेटा इस समय मेरी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर की है। तो वो कहलाएगी इंस्टेंट पे। इंस्टेंट मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, उस प्रेजेंट टाइम में, उस प्रेजेंट सेकंड में क्या स्पीड है आपकी। ये नहीं सर 10 मिनट में क्या स्पीड रही, 15 मिनट में क्या स्पीड, ना, इंटरवल नहीं है, उस इंस्टेंट पे है। अगर मैं मान लीजिए ग्राफ कहता हूं और मैं कहता हूं आपसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, और मैं बोलूं नहीं भाई ये एक से 2 घंटे में, 1 घंटे में तो भाई कितना डिस्टेंस दिख गया था ये, लेकिन 1.5 घंटे में कितना था? तो मैं आपसे क्या जानना चाह रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी है, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। एवरेज, टोटल, इंस्टेंटेनियस आपकी दैट इज वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस समय पर क्या है, वो कहलाती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चाहे आप इसे दैट इज, इसीलिए आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी क्यों है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या चाहिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या है। दैट वुड बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सी एवरीथिंग, learn everything. If there is any doubt, just send me the message or just click. Till then, remain safe and secure. Thank you.